Good evening, ma'am. Good evening, everybody. Good evening, Good evening, ma'am. ma'am. Good evening, Good Good evening, ma'am. ma'am. evening, ma'am. Evening, Good ma'am. evening, ma'am. तो सेकंड शीट पे कल हम एक्सेल पे जो कर रहे थे, क्या सब लोगों ने ईयर्स के लिए रोज इंसर्ट कर ली? प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज. Rows inserted? Okay. Remember, this is not your actual task, your actual projects that are to be covered in the in your syllabus. This is just for practice, just to make you people comfortable in using Excel. Okay, so next step is, next what I want is, see, we have to show the data year wise. So for ADF Foods, there will be years from 2008 to 2020, right? So before B, I need to insert a column wherein we will write all the years. Okay, so how do we insert a column or a row for that matter? Wherever we want to insert, उसके next वाले column के name पे, that means B column पे click करेंगे, उसको select करेंगे, then right click करके insert, right click करके insert. ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं year 2008, 2009, 2010. 2008, 2009, 2010. सिर्फ 3 डालना और मत डालना. स्टेप बिल्कुल साथ साथ में सब लोग आई होप कर रहे हैं. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक देयर इज एन ऑप्शन इन एक्सेल कि कोई भी सीरीज अगर है, लाइक दिस इज अ सीरीज ऑफ ईयर्स 2008, 9, 10, 11, 12, वी नो ये पूरा एक ऑर्डर में ही एक सीरीज है. सिमिलरली नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, या और किस चीज़ में डेट है, तो 1st of August, 2nd of August, 3rd of August एंड सो ऑन. तो कोई भी ऐसी सीरीज होती है, तो देर इज एन ऑप्शन इन एक्सेल कि हमें उसमें पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट 3 वैल्यूज, select the values, select the cells containing those first 3 values, bring your cursor to the bottom right corner, bring your cursor to the bottom right corner so that a black plus sign appears. Black plus sign appears. This is called fill handle. This is called fill handle because it is used to fill in the values of a series. Okay, so when I will click and drag it, my ears will come automatically. This will happen only when a fill handle is visible, only when a black plus sign is visible.
हो गया सबका? एक काम करो, थर्ड शीट पे आओ, आई मीन इंसर्ट इन अदर शीट, insert another sheet. Now that we are learning about fill handle, we will see what more options do we have for this fill handle. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अगर डेट्स का है अपने आप ही ट्राई करके देख लो, जस्ट राइट 3 डेट्स, उन तीनों को सिलेक्ट करके फिल हैंडल से ड्रैग करो, रेस्ट ऑफ द डेट्स विल अपीयर. ठीक है, सो ईयर, डेज, मंथ्स, मे बी आई डोंट नो, आई एम नॉट फॉर श्योर, मंथ्स चेक कर सकते हो, शायद दैट इज टेक्स्ट तो ना आए. अच्छा, another thing is, another option is, now say you want to write the serial numbers. ठीक है, you want to write the serial numbers, you write one in one cell, then you select the cells जहाँ पे आपको serial numbers चाहिए, then there is this option of fill here. होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप, लास्ट वाला जो ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है उसमें एक समेशन का साइन है, उसके नीचे वाला है दैट इज फॉर फिल. ठीक है, फिल. अब फिल पे जाके सीरीज पे क्लिक करेंगे, फिल पे जाके सीरीज. ठीक है, वी कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ सीरीज. Where do we want the answers? We want the answers in column or row? We want the answer in column. What is the type of our series? Is it linear? Is it growth? Is it a date ki series? Okay, and then here the step value you will mention the difference in next जो value है वो कितने के बाद आनी चाहिए. So say if you have to write down 5 की table, तो for in the first cell you would write 5 और यहाँ पे step value में you would write 5. That means after 5 5 5 वो वहाँ पे values आ जाएंगे. ठीक है, currently since we want serial number, so step value would be 1 and then we click OK. Now, 1st August 2021. ठीक है, ये लिखा fill series in row or column. How do you want it? Let's say rows. चलो इस बार rows में try करते हैं. Type is date. Now what do you want? You want every weekday, मतलब एक एक वीक का गैप चाहिए आपको, एक एक मंथ का गैप चाहिए, एक एक ईयर का गैप चाहिए या डेली का गैप चाहिए. ठीक है, लेट्स ट्राई मंथ का गैप. स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू. सिंस दिस टाइम आई डिड नॉट सिलेक्ट द नंबर ऑफ सेल्स जिसमें मुझे वैल्यूज चाहिए, आई डिड नॉट सिलेक्ट कि कितने सेल्स में मुझे आंसर्स चाहिए, सो इट इज आस्किंग मी टू गिव अ स्टॉप वैल्यू कि कहाँ पे जाके स्टॉप करे. ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता कब तक वो सीरीज फिल करेगा. ओके, सो लेट्स से स्टॉप वैल्यू इज 01/08/2025. ओके, क्या आया भाई? अच्छा, डिड आई गिव मंथली वैल्यूज? आई थिंक मैंने मंथ सिलेक्ट किया था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर करके टिल 2025 तक आ गया. अब ये देखो साथ में कि यहाँ पे पहले जो हैश हैश आ रहा है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत बार क्वेश्चंस करते टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि हैश हैश का क्या मतलब है. इट जस्ट मीन्स दैट योर कॉलम विड्थ इज अ लिटिल लेस, यू हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ योर कॉलम, बस, और कुछ नहीं, नॉट एन एरर. ठीक है, लास्ट देखें तो लास्ट हमारा आ गया 1st August 2025. हाउ डिड आई रीच टू द लास्ट वैल्यू? हाँ, किसी को याद है? I'm shift and arrow. I'm control and arrow. Control and arrow. Shift and arrow would select each of the cells जितनी बार आप arrow press करो. Control and arrow takes me immediately to the last value, last text value in
a cell in a row or in a column. ठीक है, so we all understand fill directly also and using this fill option from home tab. ठीक है, कोई ऐसा है किसी का नहीं हुआ, किसी को कुछ डाउट है? Okay, now coming back to our second sheet. Now that we have written years, first of all, we would need all these years for each of the companies, right? So what we can do is we can select all the years, copy them, select all the years, copy them, and then paste them against each of the companies. Okay, so like right now I'm clicking after in the cell next to ABT Natural Products and I am pasting the values. This way I won't have to write down years again and again. Okay, now in Excel, one shortcut for pasting is Control V. That is in Word as well. Another way is just simply pressing enter. Simply pressing enter key. Enter also pastes your copied values. But like in this case, what we have to do is we have to just copy once, but we have to paste it multiple times. So if we have to paste it multiple times, Control plus V should be used. If we'll use enter, what will happen is, see, if I'll use enter, then there won't be any option to paste again. If I'll press enter again or if I'll press Control V, then I won't get that option because the original copied data, the highlighted data is no more highlighted. Originally मैंने कॉपी किया था, once I press enter, उसके accordingly the whole process is over. You've copied, you've pasted, खत्म. ठीक है, but when we use Control V, the copied material stays on the clipboard and we can paste it as many times as we want. Ma'am, can we use Format Painter as well? I say, of course, Format Painter, no, Format Painter किस लिए काम होता है? हाँ नन्या, फॉर्मेट पेंटर भूल गई? अच्छा, वो सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल वो सब कॉपी करने के लिए. द थिंग, आप जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है वहां पे जाके पेस्ट स्पेशल वो सब यूज कर सकते हो, बट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज आवर यूज ऑफ माउस एंड मैक्सिमाइज आवर यूज ऑफ कीबोर्ड. ठीक है, इन एक्सेल. यहाँ तक हुआ सबका? अब हम क्या करेंगे, ईयर 2008 के अगेंस्ट तो उसकी ऑलरेडी वैल्यूज आ गई. हमें क्या चाहिए कि ईयर 2009 ऑनवर्ड्स वैल्यूज नेक्स्ट रो में आती जाए. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू रीच टू दैट कॉलम, दैट सेल वेयर इन द वैल्यू स्टार्ट फॉर ईयर 2009. ठीक है, अब वो या तो हम माउस से उसे ड्रैग कर माउस से उसे स्क्रॉल कर करके हम राइट में जाएं, या हम राइट एरो की प्रेस कर करके जाएं, या फिर हम जल्दी करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करके राइट एरो की प्रेस करेंगे. इससे देखो हम एक बार में वी हैव स्किप्ड लाइक 5-6 सेल्स एंड वी हैव इमीडिएटली रीच टू सेल J7 फ्रॉम C7. ठीक है, तो ऐसे कंट्रोल यूज कर करके हम वहां तक पहुंचेंगे जहां पे मार्च 09 लिखा है. दैट मीन्स यू कॉलम. एंड में अब भाई कंट्रोल यूज करके तुम आगे स्किप कर पा रहे हो या पीछे रह जा रहे हो तो फिर एरो कीज से कर लो. यू कॉलम में क्या लिखा है, मार्च 09. ठीक है, दैट मीन्स 2009 की वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट है. अब 2009 की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की.
कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो की, और राइट एरो की को हम प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करते करते हम बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, द लास्ट कॉलम दैट इज XFD। ठीक है, वहां तक पहुंच गए। अब इसे हम कट कर देंगे, कट का शॉर्टकट कंट्रोल X। अब हमें क्या करना है, इसे पेस्ट करना है नेक्स्ट रो में। अब नेक्स्ट रो में कैसे पहुंचे, माउस का यूज हमें अवॉइड करना है। माउस से क्या करना पड़ेगा, फिर से जो नीचे स्क्रॉल बार है उसे पूरा स्क्रॉल करके बिगिनिंग में लेकर जाना पड़ेगा। नो, easier idea would be press down arrow key. This will take you to second row. Then press control and left arrow key. This will take you directly to year 2009. ठीक है, उसके राइट में फिर से जाओ और वहां जाके एंटर प्रेस कर दो, एंटर। ठीक है, तो मतलब 2009 से स्टार्ट होकर आगे तक की जितनी भी वैल्यूज हैं हमने वो सारी कट की और 2009 के आगे आके हमने पेस्ट कर दी। All right. Similarly, we'll just repeat this process. Remember, अब हम फिर से गए U कॉलम पे। अब U कॉलम पे लिखा है मार्च 09, बट 09 की तो वैल्यूज ऑलरेडी वी हैव रिटन डाउन। तो यहाँ पे एक्चुअली किसकी वैल्यूज है, 2010 की वैल्यूज है ना। 9, 10, 11, 12, 9 की जब नीचे आ गई तो दैट मीन्स पूरे साल की वैल्यूज खत्म होने के बाद 2010 की वैल्यूज स्टार्ट हो जाएंगी। तो दिस मीन्स हमें U कॉलम पे ही हमेशा पहुंचना है, वहां पे जाके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की टिल द एंड, कंट्रोल X डाउन एरो की, कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की, फिर राइट एरो की एंड देन एंटर। हाँ जी, बताओ किसका नहीं हुआ, किसको डाउट है, सबका हो गया। मैम ये पूरा कॉलम स्टैक करने में प्रॉब्लम आ रही है। कॉलम सिलेक्ट करने में, यू मीन रो सिलेक्ट करने में? हाँ, रो सिलेक्ट करने में यू तक पहुंचे तुम? यस मैम। तो यू पे जब आप यू वाले सेल पे को सिलेक्ट करोगे उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करे रखो। सबसे पहले कंट्रोल की उसको प्रेस किए शिफ्ट की प्रेस करो, फिर इन दोनों को प्रेस करे रखो एंड देन योर राइट एरो की टिल द एंड। मतलब राइट एरो की को एक बार नहीं बस प्रेस करके छोड़ दो, आप बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओगे। ओके मैम। बाकी सबका हो गया? अगर हो गया तो सारे ईयर्स के लिए खत्म करो एडीएफ फूड्स का। हम कितने इयर्स का डेटा है ये? 2008 to 2020, 13 years. मैम जैसे हमने 2009 वाले में पेस्ट कर दिया, उसके बाद वो पूरी वैल्यू आ गई नीचे, तो 10 वाला डेटा तो पूरा चेंज हो जाएगा ना? तभी वो कहाँ जाएगा 10 वाला डेटा, वो 2009 पे आ जाएगा। तो अब फिर से तभी मैंने बोला था कि यू कॉलम पे जाओ। यू कॉलम पे क्या है, 2009 लिखा है ऊपर, ऊपर लिखा 2009 है, बट दैट इफेक्टिवली मीन्स 2010 का, मतलब नेक्स्ट ईयर का डेटा। तो मैम हर स्टेप में यू पे ही आएगा? हाँ,
ओजस्विन, Yes, ma'am. कहाँ तक हुआ? अगर नहीं करना है तो यू मे लीव द क्लास. No, no, ma'am, I've done Excel actually through an online course. तो फिर क्यों क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हो? फिर छोड़ दो. No, no, actually, ma'am, like I didn't attend first 10 classes of yours because I was like out of town. तो मैं अभी so I'm learning Word right now आपके recorded lectures के through. एंड सेकेंडली आपने एक्सेल में जो किया होगा ऑनलाइन, आई एम श्योर दीज क्लासेस वुड जस्ट हेल्प यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बेसिक हो रहा है, दीज वुड हेल्प यू ब्रश अप योर मेमोरी. ठीक है. सेकेंडली, आगे की जो क्लासेस होंगी दे आर वेरी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स. तो आई एम नॉट श्योर कि आपका वो सिलेबस ऑनलाइन कोर्स में सेम होगा कि नहीं होगा. नहीं मैम, मैं ये वाले क्लासेस तो करूंगा ही. Like I haven't reached Excel अभी. I'm on your Word का last class. After that, I'm gonna start with Excel because I missed 10 classes now. I was out of town. So right now, what's more, doesn't it make sense that you practice along with the class? It does, ma'am, but then I have to come over this lecture again. So why would I like do it twice? I would just do it then when I reach this lecture. सर्वेश, तो अभी मत अटेंड करो, जाओ क्लास से. क्या करोगे? नहीं मैम, ऐसी ओके मैम. ओके. हम अटेंडेंस भी मतलब that matters तभी हम otherwise working also साथ साथ में like X उस पे Word पे but तनुष. एक्सक्यूज मी मैम. या रचित. मैम 9 का डेटा पेस्ट करने के बाद फिर आगे वो वाला जैसे कमांड वो कंट्रोल ई करके आगे जा रहे हैं. क्या करके? कंट्रोल एंड ई. कंट्रोल एंड ई से क्या हो रहा है? कंट्रोल ई एंड एरो, तभी तो यू वाले सेल पे जा रहे हैं. बेटा, ई की जरूरत नहीं है, सीधा कंट्रोल एंड राइट एरो. ओके. तो मैं पहले बस 2009 वाला जो डेटा है पहला वैल्यू उस पे उस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड राइट एरो. नहीं, कंट्रोल शिफ्ट. अच्छा, कट करने के लिए आपको पूछ रहे हो? या देखो, पहुंचने के लिए सिर्फ कंट्रोल एंड एरो की. बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा फॉर कॉपीइंग, कट और कटिंग एंड पेस्टिंग, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की. कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो. ओके. हाँ तनुष, कहाँ तक पहुंचे? अनम्यूट करके बोलो. oh sorry 2011. ओके, हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो एज आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल अराउंड कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 7 people हैव ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास. So good idea. So I should do this every day now. People who are not interested wouldn't bother to join the class. Shubh. Yes, ma'am. हाँ जी. Ma'am, 2013 का. कोई डाउट? No, ma'am. दीपक. यस मैम. हाँ जी, बताइए. स्क्रीन शेयर करेंगे आप? जी मैम. हाँ जी, जी मैम. कीजिए. पुनीत, हो गया तुम्हारा? मैम लैपटॉप नहीं है. मैम स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता मैं, फोन से ज्वाइन किया. ओके, तो आप अपने फोन का कैमरा से आप मेरे को दिखा दीजिए कि आप काम कर रहे हैं. एंड पुनीत भाई, आज लैपटॉप क्यों नहीं है आपके पास? क्या चक्कर है? मैम वो बैन ले गई. बैक कैमरा तो फोन होगा मैम, फोन का. एक मिनट रुको दीपक, तुम्हारी सुनते हैं. पुनीत, तो ध्यान तो कहीं पे लिख लो, कुछ ध्यान से बाद में कर लेना. यस मैम, मैं कर लूंगा प्रैक्टिस जब लैपटॉप आए. अच्छा. हाँ दीपक, आप बोलो. फोन के कैमरा को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अदर्स जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर थ्रू विद द फर्स्ट कंपनी. ओके. हाँ दीपक. बैक कैमरा कैसे ऑन करूं मैम फोन का?
कैसे ऑन करूँ, क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या है? चलो अच्छा, फ्रंट कैमरा तो है। फ्रंट से फ्रंट देख लो मैम, दिख रहा है। थोड़ा पास लेकर जाइए। दिख रहा है मैम। हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब मुझे ईयर पे लेकर जाओ, एडीएफ फूड्स के ईयर पे लेके जाओ। ईयर, कैमरा को लेफ्ट में लेके जाओ। बिग, हाँ ठीक है। तुम अटक गए हो 2010 पे ही, क्यों अटके हुए हो तुम अभी तक वैसे? हाँ जी दीपक। कर रहा हूँ मैम, आगे कर रहा हूँ। हाँ हाँ रिदम बोलो। डन। नहीं मैम, ये मैम कुछ फ्लैश फिल हो रहा है बहुत देर से स्पेस एक्सेल पे, एंड कुछ नहीं हो रहा है, बस लोडिंग हो रही है। उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा उसे कैंसिल करने का? नहीं मैम, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या हो रहा है दिखाओ, या तो स्क्रीन शेयर करके। Yes, और एस्केप प्रेस करने पे क्या हो रहा है? और वो फ्लैश फिल के फिर से ऑप्शन पे जाके देखो क्या हो रहा है। मैम हो गया, एस्केप प्रेस करने से हो गया। Four more people gone. मैम ये तो हो गया 2020 तक। First company done. यस मैम। Okay. बाकी लोग, किसी को कुछ डाउट है? मैम लाइक 2008-9 का डेटा कॉपी करने के बाद ये सेट कि यू वाली रो पे 2010 का डेटा आ जाएगा, बट लाइक दैट इज नॉट हैपनिंग मी। एक बार फिर से बता दीजिए वो चीज़। मतलब क्या हो रहा है आपके साथ में? वो यू पे मैम जाके क्या आ ये रहा है? सारे, मैम यू पे वापस से 9 ही आ रहा है एंड उसके बाद आगे 10 वो लाइन से सारे आ रहे हैं। नहीं नहीं, यू पे लिखा 9 ही होगा, बट यस आप मैम। आप ये सोचो, आपके पास रो में डेटा है 8, 9, 10, 11, ठीक है? तो आप जब 9 से पिक करके सारा नेक्स्ट रो पे लेकर आओगे, तो नेक्स्ट रो में क्या डेटा होगा? 9, 10, 11, 12। तो इवन दो ऊपर लिखा होगा 2009, बट वो डेटा किसका होगा? 2010 का। ओके ओके, यस मैम, यस मैम। दैट इज थैंक यू व्हाट मैम। आई मेंट। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ चेंज नहीं होगा। People, I'm honestly telling you this thing. If you would ever go for any interviews and you would tell them you know Excel, your prospects will be much, much better than any other candidate who doesn't know Excel. So you should try to absorb as much as possible in Excel. Rhythm, if you've done for first company, you can proceed for a few more companies. I want everybody to be done with at least one company. When all of you will be done with first company for all the years, Completed two we'll move companies. ahead. Huh? Completed 2 companies. Completed मैम two डन। companies. Okay, good. So 3 people done. और बोलो, और किसी का हुआ है? First company 13 years. फर्स्ट कंपनी हो गई। फर्स्ट कंपनी डन हो गई, ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो यू okay, so you people just know the process. If you want to practice, तो बाद में after the class you can finish up this whole sheet, ठीक है? Okay, now come to sheet 1, I mean the class list वाली sheet. Currently, this sheet is organized as per the college roll numbers. So the roll numbers are in ascending order. Accordingly, all the other information is there. Okay. Now let's see how can we sort this information. How do we sort? Okay. पहले हम किसी और sheet पे जाते हैं. So I will write your name.
So these are the names. If we have to arrange them in ascending or descending order, or for that matter, any information, could be numbers also. If we want to arrange them in ascending or descending order, we'll select the data. We'll go to this option of sort and filter. Sort and filter. We'll select for any of these options. If we want in ascending order, then sort A to Z. If we want in descending order, we'll sort Z to A. ठीक है? This is the common usual process that we know from MS Word also, right? ये वाला सबको पता है. Now coming back to class list. क्लास लिस्ट में क्या है कि रोल नंबर वाइज ऑलरेडी है. ठीक है. whenever there are more than one columns in a table, और हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर दें जहां पे भी हमारा डेटा है, एक्सक्लूडिंग द हेडिंग. इफ आई सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस डेटा एंड इफ आई यूज दिस ऑप्शन ऑफ सॉर्ट और एंड फिल्टर, तो ये क्या करेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो इसने क्या किया, तो सॉर्ट एंड फिल्टर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में इसने क्या किया, फर्स्ट कॉलम जो है टेबल का उसके अकॉर्डिंग वो सॉर्ट करेगा. ठीक है. जितने में भी आपका डेटा है बट वो सिर्फ फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा. अगर हमें सॉर्टिंग चाहिए ऑन सम अदर बेसिस बिसाइड्स द फर्स्ट कॉलम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके कस्टम सॉर्ट. कस्टम सॉर्ट. नाउ कस्टम सॉर्ट में सॉर्ट बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सीरियल नंबर. व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर फर्स्ट कॉलम. ठीक है. अच्छा वेट, सॉरी, पहले ऐसे ही छोड़ते हैं. फर्स्ट मतलब वी डोंट वांट टू चेंज द सीरियल नंबर, वी वांट आवर डेटा टू बी रीअरेंज्ड एज पर नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो बाकी डेटा सीरियल नंबर को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके कस्टम सॉर्ट. ओके. तो वन थिंग दैट आई जस्ट रियलाइज्ड इज, जो भी मैं डेटा सिलेक्ट कर रही हूँ उसका टॉप रो जो है वो एक्सक्लूड कर रहा है, अज्यूमिंग दैट टॉप रो इज द हेडिंग्स वाली रो. ठीक है. So now I'll again select including the top row so that whenever I'll go to custom sort वो first को exclude कर देगा. So my purpose is solved. Sort by में इस बार हम क्या कर देंगे, name of the student. Name of the student. If I want the sorting to be done as per name of the student. Sort on cell values and sort order A to Z. If you want in ascending order A to Z, descending order Z to A. ठीक है. Click OK. So now the list gets arranged by. हाँ मैम कस्टम सॉर्ट वाला फिर बता दिए. मेरा नेटवर्क हो गया था ना दिन से. मैम मैंने इतना सुन लिया था कि सॉर्ट में होता है मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है. देखो कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, अगर हमें जैसे यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग जो है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग. रोल नंबर्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में. अगर मुझे फर्स्ट कॉलम नहीं सेकंड थर्ड या किसी और कॉलम के बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है तो हमें कस्टम सॉर्ट यूज करना पड़ता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग से लेकर सारा डेटा इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे. अच्छा रिमेंबर हाउ डू वी स्पीड अप द प्रोसेस. कॉलेज रोल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, सब्जेक्ट तक सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया. सॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम सॉर्ट. नाउ वी मेंशन कि हमें किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है. So here we'll select name of student, cell values A to Z. A to Z में मतलब name of the students ascending order में हमारे सॉर्ट हो गए. अकॉर्डिंगली उनके जो लेफ्ट और राइट के उससे रिलेटेड जितना भी डेटा था वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. ठीक है. अंडरस्टूड. यहाँ तक सबको समझ में आया. इसके बाद हम आगे इसी में ही आगे सीखने वाले हैं सॉर्टिंग में. अच्छा और ऑप्शन क्या है हमारे पास सॉर्टिंग का, ये ऑप्शन था कि हमने नेम ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कर लिया. ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें क्लास लिस्ट बनानी है फॉर डिफरेंट टीचर्स हु आर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो वी नीड द सॉर्टिंग एज पर सब्जेक्ट. तो हम क्या करेंगे, फिर से सारा डेटा सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम सॉर्ट. इस बार नेम ऑफ द स्टूडेंट की जगह हम सब्जेक्ट कर देंगे. सब्जेक्ट सेल वैल्यूज A to Z. तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सारे आ गए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सारे आ गए,
एंड देन उसके बाद ओबी के सारे आ गए, ठीक है। तो नाउ दिस वुड बी इजी इफ आई वुड हैव टू सेंड सेपरेट लिस्ट टू 3 different टीचर्स, राइट। फर्दर नाउ द टीचर्स मेक देयर अटेंडेंस लिस्ट एज पर रोल नंबर्स, ठीक है। सो वी वांट कि सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट वाइज सॉर्टिंग करूं, उसके बाद जो डेटा आया मतलब सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में जितने भी बच्चे हैं उनकी सॉर्टिंग हो एज पर रोल नंबर। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट किया कस्टम सॉर्ट। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी रोल नंबर, दैट मीन्स पूरा डेटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट, सेल वैल्यू और A to Z ही रखना है। उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन जो टॉप पे है ऐड लेवल, वो सिलेक्ट करेंगे कि वंस फर्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग इज डन वी वांट नेक्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग। उसमें क्या करेंगे, वी हैव टू सॉर्ट बाय कॉलेज रोल नंबर and in the order of, in the ascending order, so A to Z. Click OK. So now entrepreneurship development के बच्चों का ऑर्डर रोल नंबर वाइज सेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया, किसी को कुछ डाउट? अच्छा, अब जब भी कस्टम सॉर्ट यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, सॉर्ट बाय, जिसमें हम कॉलम का नाम देते हैं किस कॉलम से सॉर्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड ऑप्शन है सॉर्ट बाय सेल वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे ना तुम करके देखोगे तो और भी ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है, वन इज सेल कलर। तो से इफ यू हैव योर डेटा अरेंज्ड एंड आपने कुछ फॉर सम रीजन मार्किंग कर रखी है सेल में कलर्स फिल करके, जैसे कि suppose out of these students there are 5 students who did not pay their fees and you have highlighted their names. How do we highlight, how do we fill color in a cell? यहाँ पे font home tab पे font group में ऑप्शन है fill का, by default येलो है, आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फीस पे नहीं की, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स। नाउ आई वांट कि इन 5 को मैं लेकर आऊं, तो व्हाट वील डू दिस टाइम, डेटा पूरा सिलेक्ट किया, कस्टम सॉर्ट, या तो हमें इसमें कंटिन्यू करना है। इसमें कंटिन्यू करने से बात नहीं बनेगी बिकॉज ये बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू करने से बात नहीं बनेगी। मैं इन वाले जो एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर रही हूँ। मतलब कैसे डिलीट करते हैं, देन बाय जो सेकंड लेवल है उसको सिलेक्ट किया, डिलीट लेवल, फर्स्ट लेवल को सिलेक्ट किया, डिलीट लेवल, एंड देन आई एम एडिंग अ न्यू लेवल, न्यू बेसिस ऑन विच आई हैव टू do the sorting. Sort by name of the student. Instead of cell values, we'll select cell color. Cell color. अब या तो no cell color on top या yellow cell color on top. So yellow cell color, this has to be on top or on bottom. I'm selecting that to be on top. Then click OK. So all the students with yellow cell colors will come on top. यहाँ तक सबने किया, किसी को कुछ डाउट, कोई अटक गया, नहीं हुआ? जैनब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही इधर, राइट जो पॉइंट आपने, हाँ विनीत बोलो। आपने जो अभी बताया वो एक बार फिर से बता दो प्लीज। अगर मुझे सॉर्टिंग सेल कलर्स के बेसिस पे करनी है तो हम पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे कस्टम सॉर्ट, जो एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग्स हैं उनको मैं डिलीट कर रही हूँ एक एक करके, डिलीट लेवल,
डिलीट लेवल, ऐड लेवल करके सॉर्ट बाय, कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, सॉर्ट ऑन, दिस टाइम वी वोंट सिलेक्ट सेल वैल्यूज, वी विल सिलेक्ट सेल कलर, ठीक है, एंड सेल कलर के बाद which values do you want on top, we want yellow color cells on top, so click OK. थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, हो गया सबका। इसमें तुमने नेक्स्ट ऑप्शन देखा था, वैसे नेक्स्ट वाज कि फॉन्ट कलर अगर चेंज हुआ हुआ तो फॉन्ट कलर मतलब, तो एक ऑप्शन है हम पूरे सेल में कलर फिल कर रहे हैं, एक ऑप्शन है जो उसमें टेक्स्ट लिखा है उसका कलर जो यहाँ पे टॉप में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर से चेंज हो सकता है। ठीक है, अगेन मल्टीपल कलर्स आप चेंज कर सकते हो कलर्स। ओके, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर, जो अभी काम हमने सॉर्ट से किया वो काम हम फिल्टर से भी कर सकते थे, बट आई मीन नॉट ऑल द टास्क, बट हाँ ओके। तो फिल्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, यू वांट अ लिस्ट ऑफ ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सॉर्ट में क्या किया हमने, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर दिया, बट बाकी सारे हमें शीट पे दिख रहे थे। फिल्टर में क्या होगा, जिस सब्जेक्ट पे हमने फिल्टर लगाया सिर्फ वही दिखेंगे, बाकी हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो हाउ डू वी डू इट, हेडिंग सिलेक्ट की, हेडिंग सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, और हेडिंग सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर। ठीक है, फिल्टर पे जाते ही क्या हुआ, सबके हर एक हेडिंग के पास एक एरो आ गया। अब उस एरो में जब हम सब्जेक्ट वाले साइड, सब्जेक्ट पे जब जो साइड में एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। क्या ऑप्शंस है अभी फिलहाल, क्या है, सिलेक्ट ऑल द ऑप्शंस आर सिलेक्टेड। If I want to select only entrepreneurship development, I'll first deselect everybody, or I'll simply deselect the other options. ठीक है, click OK. So only the students with this subject are visible. देखो यहाँ पे जैसे लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5, बाकी बीच की रोज गायब है। ठीक है, फिर 20 के बाद रोज गायब है क्योंकि उन सब में बाकी सब्जेक्ट्स का डेटा। ठीक है, अगर सारा चाहिए तो फिर से फिल्टर पे जाओ, सिलेक्ट ऑल कर दो, ओके, ऑल योर ऑल द स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल कम बैक। ठीक है, तो इसका क्या काम है, तो दिस ऑल्सो मेक्स आवर टास्क ईजियर। अगर मुझे ओबी की लिस्ट स्पेसिफिकली चाहिए, किसी टीचर को देनी है, तो आई विल सिलेक्ट दिस, इस पे जितना डेटा है उसको कॉपी करके आई विल पेस्ट इट ऑन अनदर शीट एंड देन सेंड दैट शीट टू दैट टीचर। ठीक है, फिल्टर सबको समझ आ गया। अच्छा, फिल्टर ना, ओके, फिल्टर में भी देयर आर ऑप्शंस, आई विल शो यू। तो पूछना है किसी को कुछ? मैम मैं पूछ रहा था, जैसे अगर हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया किसी पे और उसके बाद हम उसको प्रिंट करते हैं तो पूरा डेटा प्रिंट होगा या फिर जो फिल्टर वाला है सिर्फ वही? जो फिल्टर वाला है सिर्फ वही, आई थिंक सो, प्लीज चेक इट। ठीक है, अच्छा मैं दिखा रही थी फिल्टर की और ऑप्शन। तो नेम ऑफ स्टूडेंट पे, अच्छा जैसे फिल्टर है तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे नेम्स आ गए क्योंकि ये कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है, हर किसी का नेम इज डिफरेंट। तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फिल्टर बाय कलर ऑल्सो। यू डोंट वांट टू फिल्टर बाय टेक्स्ट, यू वांट टू फिल्टर बाय कलर। तो आप सेल कलर के हिसाब से अगर आप करोगे, तो मैंने 5 सिलेक्टेड ये लो, तो सिर्फ वो वाले दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रहे।
ठीक है, फिल्टर हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, इफ यू वांट टू रिमूव द फिल्टर्स तो सेम ऑप्शन, फिल्टर पे जाके क्लिक कर दो, हट जाएंगे फिल्टर। Okay, now suppose we have marks of each of these students, ठीक है, out of 25, तो किसी के 25, किसी का 20, किसी का 15, 10, 0, 5, 6, 8, ठीक है। There is an option of conditional formatting. Conditional formatting, यहाँ पे ये ऑप्शन। अब उसके लिए क्या करना है हमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, दैट वी कैन अप्लाई सर्टेन फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो व्हेनेवर योर डेटा फुलफिल सर्टेन कंडीशन तो उस पर कुछ फॉर्मेटिंग लग जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज मुझे ये फॉर्मेट, मुझे चेक करना है, मुझे जानना है कि कितने बच्चे हैं या कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आर लेस दैन 10, ठीक है। So what I'll do is I'll select the data, go to conditional formatting, highlight cell rules. First option is highlight cell rules. Second option, इसमें एक है greater than, less than, between, equal to, हमें क्या चाहिए, less than 10, तो less than 10 with light red fill विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये क्या है कि आपका जो फॉर्मेटिंग के बेसिस पे जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखना चाहिए। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन कि फिल का कौन सा कलर होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए। हाउएवर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू वांट टू यू कैन चेंज द कलर्स फ्रॉम हियर एंड देन क्लिक ओके। तो वो जिनके लेस दैन 10 थे वो हाईलाइट हो। अच्छे से देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम जैसे अभी ये लेस दैन 10 वाले सारे ऑर्डर में थे, अगर कोई ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, अभी देखो मैं कहीं और किसी और की वैल्यू चेंज कर दूं, वो भी हो गया। इन सारे सेल्स में मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो उन सेल्स में जब भी वो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल होगी वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके देयर इज एन ऑप्शन ऑफ क्लियर रूल्स। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। करंटली हमारी पूरी शीट पे सिर्फ एक जगह ही है, सो आई एम क्लियरिंग द रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है। ओके, अब ये बताओ आगे बढ़े या रुक जाएं, मतलब ज़्यादा हो रहा है आज के लिए या आगे पढ़ाऊं फॉर्मूलाज वगैरह, जल्दी बोलो। कल करेंगे मैम। हम कल करेंगे। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। Today's 15th. हर्ष, यस मैम। अनुष्का गुप्ता, ओजस्विन, अलेख, निमिषा, प्रेजेंट मैम। अनुप्रिया, सर्वेश, आयुषी सक्सेना, Zainab, Ayushi is here. Yes, ma'am. Zainab, प्रेजेंट मैम। आयुषी आपने किया जो भी करवाया था क्लास में? यस मैम, किया था। सब हो गया, कोई डाउट नहीं है? नो मैम।
स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। श्रेयांश, कार्तिक, चेतन, प्रेजेंट मैम। अनुष, प्रेजेंट मैम। रिधम, प्रेजेंट मैम। शुभ, प्रेजेंट मैम। निपुण, प्रेजेंट मैम। मधुर, दीपक, प्रेजेंट मैम। पीयूष, रोहित गुप्ता, ध्रुवित, प्रेजेंट मैम। वेदांत, अनन्या, प्रेजेंट मैम। हार्दिक, प्रेजेंट मैम। पुनीत, प्रेजेंट मैम। मल्लिका, प्रेजेंट मैम। तुषार, विनीत, प्रेजेंट मैम। अभिषेक, प्रेजेंट मैम। मयंक, प्रेजेंट मैम। काजिया, रजनीश, योगेश, प्रेजेंट मैम। इरफान, प्रेजेंट मैम। आदित्य, अनुज, हार्दिक गर्ग, तंजीम, प्रेजेंट मैम। हर्षित, हर्षित गर्ग, अंशुल यादव, प्रेजेंट मैम। केशव, ममता, भव्य, प्रेजेंट मैम। रचित, प्रेजेंट मैम। खुशी, निखिल खंडेलवाल, अनमोल, रूपल सुमनदीप, प्रेजेंट मैम। रूपल, यस मैम। ओके। और कोई रहता है? नहीं, मुझे एक डाउट है मैम। हाँ जी, पूछो। मैम मैम 2763 मेरी अभिषेक। अटेंडेंस। एक मिनट रुको, हेलो। एक मिनट। क्या क्या जैनब बोलो। मैम मेरी अटेंडेंस हो गई। तुमने बोला था हाँ हो गई। ओके मैम। मैम 2763 अभिषेक। 2763 अभिषेक, ओके। और कोई रहता है? If your attendance is marked, if you have no doubts, you can leave. If you मैम have डाउट, doubts, हाँ बोलो अभिषेक, बोलो। जैसे मैम आपने बताया था कि मतलब अगर उसको सिलेक्ट करना हो जैसे कि एक बार में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस राइट एरो को दबा के करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरे इसमें मैम वो हो नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, आई विल हेल्प यू आउट। ओके मैम। जैसे मैंने मैम इस पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैम हो नहीं रहा आगे। कंट्रोल पहले दबाओ और दबा के रखना, इसमें दबा के रखा हुआ है। फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करो, उसे भी प्रेस किए रखो। हम्म, अब राइट एरो की मैम दबा रहा हूँ लेकिन मैम नहीं हो रहा है। एक बार कर्सर हिलाना, वापस से उस पर क्लिक करो 1867 पे, उसे ओके नीचे मैम। पे एक बार क्लिक करो, फिर से करो उस पे, अब फिर से करो एक बार, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। मैम नहीं हो रहा है, मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हो रहा है देखो, लेकिन राइट में कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स आपकी राइट एरो की में गड़बड़ है। बट मैम अगर मैं सिंपल ही कर रहा हूँ तो हो रहा है देखो, ये राइट में दबा रहा हूँ तो। हम्म, आई डोंट नो भाई, इसका क्या क्लास में भी मैं उस टाइम पे भी मैं ट्राई कर रहा था, मतलब मैं अपने आप हो जाएगा या तो कोई ग्लिच होगा, लेकिन फिर वो हुआ ही नहीं है, तब से हुआ नहीं है वो।
एक बार यहाँ पे रखना, एक बार यू वाले कॉलम पे जाना। यू एक्चुअली हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पे शायद हो सकता है कुछ हो ही ना, टेक्स्ट ही ना हो। यू पे जाओ। यस मैम। थोड़ा और राइट में जाओ, और राइट पे जाओ। अच्छा, कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करो, कंट्रोल और राइट एरो। दबा दिया। ये आप कौन सी कंपनी का, फर्स्ट कंपनी का कर रहे हो ना तुम? अभिषेक, कुछ तो तुमने गड़बड़ की है पहली चीज। अच्छा, अब करके दिखाओ मुझे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, अब करके दिखाओ।